Welcome dear students. I welcome you to the course of Artificial Intelligence and lecture number 23. First of all, we will go through the previous lecture, what we have done until now, and then we will continue from there. So in the last lecture, what we did, we were looking for diff templates, what diff templates are, to define a templates so that we can put some values there. We can have a structure where we can keep all the data of same time related to same group, and then if we want to put some facts in a fact list according to that template, then it is possible because we have a feature named diff template. And then we were looking for single slot. If we have single slot value there, how we can put their values, and if we want to compare it, and if we want to have a fixed value, like we did the example of assets poor, where we need to have only to collect the data where the assets are poor, and we can keep this in our template, and then we can have the facts. And when we have the facts, we can only fire the rule where we can check according to that. So there are different methods, and then we try some of them, and after that we learn how to use multi-slot. If we want to use multiple values instead of single value, then we can use multi-slot with the $sign, and then we did only the example with the only using it in a slot with the slot name, and then if we have name in first and second options, then we can keep both of it and we can use that one. So we did one small example in the end of that lecture, and today we will continue, and we will use some other functionalities like some simple logical operators, and or if we want to have if you want to combine different objects or facts, if we want to use optional, if there is any of it, or if you want to negate something. And then we will also learn today some arithmetic operation, basic arithmetic operation. And also we will try to understand if we want to take something from a keyboard input on runtime, so how we can do it. We will learn the basic of it, and then inshallah in next lecture we will go in detail. So today we will learn a little bit how we can give some input from a keyboard while the system is waiting for input, and we can keep this in a variable, and then we can utilize it. And also some other small functionalities that we will need to have it in Eclipse for complete program. So we will begin today's lecture. Let's reconsider the problem of designing an expert system to help robot cross a street. One rule that you would have follows: diff rule, green light, light green. Then if this is a if condition, then we have then print out walk. So another rule would cover the case of red light. Diff rule, red light, and the option is light is red, and the action is don't walk. So if we want to have this functionality, we will need to have two rules for it, and these two rules we can have different options. We can have multiple rules if we have multiple situations, and in every situation we will need to make a rule for it. So this is one situation, and now if we want to add another rule, the third rule would cover the case in which a walk sign said not to walk. This would take precedence over a green light. Diff rule walk sign
walk sign said don't walk. Print out don't walk. So here we have don't walk option, and in the previous one we have don't walk also in the red case. So the actual point is that if we want to introduce something which is not allowed, like which is not going to take place, we want to restrict something. हम यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देख रहे हैं कि हम अगर वो जो रोबोट है हमारा वो सिंपल रूल्स को फॉलो कर रहा है एक स्ट्रीट के अंदर, और वहाँ पर हमने पहले एग्जांपल की थी कि अगर लाइट ग्रीन है तो वॉक की ऑप्शन आ जाए, अगर लाइट रेड है तो रेड लाइट यहाँ पर, क्योंकि फैक्ट ये होगा, ये चेक हो रहा होगा, ये रूल का नाम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डोंट वॉक आ जाए। तो हमने अगर थर्ड रूल ये बताया कि वॉक साइन जो है, जो वॉकिंग साइन होते हैं मोस्टली कंट्रीज़ के अंदर ट्रैफिक रूल्स में, कुछ जो है वो व्हीकल्स के लिए होते हैं और कुछ जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनके लिए वॉक साइन होते हैं। तो अगर वॉक साइन कह रहा है कि डोंट वॉक, देन द रोबोट शुड स्टॉप and not to walk, because there is a possibility that there is a green light. So light is green, you have option to walk, but the walk sign says not to walk, then you must stop there. The previous rule are simplified and don't cover all cases such as breakdown of the traffic light. For example, what does the robot do if the light is red or yellow and the walk sign says walk? हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, हम सारे ऑप्शंस को कवर नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपल एक 3 रूल वाला एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हैं जो सिर्फ 3 रूल को अंडरस्टैंड करे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि कुछ जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो ख़राब हैं, तो फिर क्या होगा। अगर तो ये है कि जो लाइट है वो रेड है या येलो है, लेकिन जो वॉक साइन है वो कह रहा है कि आप जा सकते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, हम उन सब को कंसिडर नहीं करते, हम फिक्स रहते हैं एक आइडियल सिचुएशन के लिए। अ वे ऑफ हैंडलिंग दिस केस इज टू यूज फील्ड कंस्ट्रेंट टू रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू दैट अ पैटर्न में हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. The field constraint act like constraint on patterns. यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि हम कोई constraint कर दें, हम कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें जो ये बताए कि अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो वो उस सिचुएशन में क्या करे। क्योंकि हम हर एक सिचुएशन के लिए रूल बनाना हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सिनेरियोज तो बहुत सारे हो सकते हैं, हर सिनेरियो के मतलब सोचना और फिर उसके लिए रूल बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब इसका आसान तरीका क्या है कि हम उस पर कोई कंस्ट्रेंट कर दें, हम उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि अगर इन ऑप्शंस के अलावा कोई भी ऑप्शन हो तो आप उसको अवेल ना करें। वन टाइप ऑफ फील्ड कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड कनेक्टिव कंस्ट्रेंट. देयर आर 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव कंस्ट्रेंट्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड not constraint, or we can also say a tilt. Its symbol is a tilt. The tilt constraint act on the one value that immediately follows it and will not allow that value. तो यहाँ पर सिंपली ये बताया जा रहा है कि हमारे पास बहुत सारे constraints के टाइप हैं। बेसिक हम अंडरस्टैंड जो करेंगे उनमें 3 होंगे, हम 3 कांस्टेंट पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो पहला है हमारे पास टिल्ट है। अब टिल्ट करता क्या है कि ये नॉर्मली जो उसके साथ इमीडिएटली कोई भी वैल्यू होगी वो उसको उसके साथ एक्ट करेगा, वो उस पे डिपेंडेंट होगा। सो वो वाली वैल्यू जो बिल्कुल टिल्ट के पास होगी तो वो उस पे एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म करेगा। As a simple example of the tilt constraint, suppose you want to write a rule that would print out don't walk if the light was not green.
अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशंस बहुत सारे हैं और वो डेंजरस हो सकते हैं, इस वजह से हमें सिर्फ ये देखना है कि जब लाइट ग्रीन होगी तब ही वॉक करे रोबोट, और बाकी जो भी सिचुएशन हो उसमें वॉक ना करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वन ऑफ द अप्रोच वुड बी टू राइट रूल्स for every possible light condition, including all possible malfunctions: yellow, red, blinking yellow, blinking red, blinking green, walking yellow, or winking yellow, blinking yellow and winkling red, and so forth. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर ब्लिंकिंग हो रही हो, वो कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा हो, येलो लाइट या जो है ग्रीन जो है वो कंप्लीट ऑन नहीं हो रहा, तो ये सारे ऑप्शंस अगर हों तो उन सब के लिए फिर हमें क्या करना होगा, रूल्स बनाने पड़ेंगे। और रूल बहुत ज़्यादा होंगे अगर, तो ये सिंपल 3 लाइट हैं और 3 लाइट्स के पॉसिबिलिटीज़ हम देखें तो वो काफ़ी सारे बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट हो तो उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमने जो सेफ साइट रखनी होगी, वो सेफ साइट क्या होगी कि जब ग्रीन हो, सिंपल ग्रीन हो तो फिर चले, अगर बाकी जो भी कंडीशन हो तो वो डेंजरस है, उस सिचुएशन में वो वॉक ना करे। तो अब ऐसे सिचुएशन के लिए हमें बहुत सारे रूल्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन है एक और, हाउएवर अ मच ईजियर अप्रोच इज टू यूज अ टिल्ट कांस्टेंट एज शोन इन द फॉलोइंग रूल। हम अब आगे रूल देखते हैं कि अगर हम उसके अंदर सिंपल टिल्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा कर देगा। हम डिफाइन कर रहे हैं रूल को, डिफ रूल, वॉक के नाम से हमने उसको नाम दे दिया रूल को। लाइट और टिल्ट वैल्यू हमने बताई और साथ में ग्रीन बता दिया कि जब ग्रीन के अलावा कुछ भी हो, जब ग्रीन ना हो तो क्या करे, प्रिंट आउट डोंट वॉक। By using tilt constraint, this one rule does the work of many other rules that require specifying each light condition. अब लाइट की कोई और कंडीशन कोई भी आ जाए, वो उसमें क्या करेगा, वो उस पे हमेशा ये देगा डोंट वॉक। और अगर तो ग्रीन आ रहा है, सिर्फ ग्रीन के ऊपर वो इस रूल में नहीं आएगा और बाकी सारे में वो क्या करेगा, इस रूल पे आ जाएगा। अब इसको हम सिंपली करते क्या हैं, हम इसके प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने विंडो ओपन कर ली है क्लिप्स की। अब हम देखते हैं कि हमने कौन से रूल्स बनाए हैं। और हमने वही सिंपल रूल बनाए हैं कि डिफ रूल वॉक, तो इसको हमने नाम दिया वॉक का, लाइट टिल्ट ग्रीन। अब हमने साथ में ये बता दिया कि ग्रीन के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या करेगा, इस रूल में आएगा। लाइट के साथ जब कोई भी वैल्यू आ रही होगी तो वो इसको चेक करेगा। प्रिंट आउट की हमने किया डोंट वॉक, डोंट वॉक करेंगे तो ये एक रूल कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा जो रूल था हमने जो बताया कि वॉक साइन है, अगर वॉक साइन सेज डोंट वॉक तो ये इफ कंडीशन है। नॉर्मली अगर हम लाइट के साथ करेंगे तो तब होगा ये, तो अलग इसके लिए इफेक्ट सेम इसी तरह देना होगा तो तब ये आएगा डोंट वॉक। लेकिन जो लाइट वाले हैं हम उसमें देखते हैं डिफ रूल ग्रीन लाइट के लिए, तो लाइट अगर ग्रीन है तो वॉक का साइन आएगा, और सेम अगर रेड लाइट के लिए है तो लाइट अगर रेड है तो डोंट वॉक आएगा। अब हम करते ये हैं कि हम असर्ट करते हैं फैक्ट्स को, हम देखते हैं कि क्या होता है। असर्ट लाइट, अब लाइट मैंने बताना है, साथ में मैंने किया क्या कि मैं रेड का बता रहा हूँ, रेड कलर मैंने बता दिया। अब रेड कलर मैंने बताया तो कौन सा रूल फायर होगा, जो जिसके साथ लिखा हुआ है रेड लाइट, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसके साथ मैच हो रहा है। हमने देखा कि क्या हुआ, रेड लाइट हुआ, रेड लाइट के साथ ये किसकी वजह से हुआ, ये फैक्ट नंबर 1 की वजह से हुआ। और फिर हमारे पास जो वॉक वाला साइन था ये भी एक्टिव हो गया, एक्टिवेट हो गया। उसकी क्या वजह थी, क्योंकि ग्रीन नहीं था,
ग्रीन के अलावा जो भी होगा हमने बताया कि ये वाला रूल एक्टिवेट होगा। अब हमारे पास ये वाला रूल, दोनों रूल जो है एक्टिवेट हुए हैं किसकी वजह से, लाइट रेड की वजह से। और जो जब लाइट ग्रीन नहीं होगा तो उस सिचुएशन में भी डोंट वॉक है, और जब लाइट रेड होगा तो उस सिचुएशन में भी हमारे पास डोंट वॉक है। हम सिंपली इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट में। डोंट वॉक का मैसेज आ गया। अब हम करते ये हैं कि हम इसमें सिंपली येलो या हम ग्रीन कर देते हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है। जब हम ग्रीन करेंगे, एंटर करेंगे, तो फैक्ट नंबर 2 की वजह से ग्रीन लाइट का जो रूल है वो कॉल हो गया। ग्रीन लाइट का रूल ये है, और जब ग्रीन लाइट होगी तो तब हमारे पास क्या होगा, वॉक का साइन आ जाएगा। हम रन करते हैं इसको सिंपली। जब हमने रन किया तो हमारे पास अब यहाँ पर आया रिजल्ट में वॉक, प्रिंट आउट टी हुआ, इस वजह से यहाँ पर आ गया। अब हम करते ये हैं कि हम इसमें ग्रीन की बजाय कुछ और देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं येलो देता हूँ। यहाँ पर मैंने येलो किया, तो अब मेरे पास कौन सा रूल फायर होना चाहिए या एक्टिवेट होना चाहिए, जब जो भी ग्रीन के अलावा होगा वो वाला रूल। और वो कौन सा था, ये टेल्ट के साथ, नॉट ग्रीन। अब मैंने इसको एंटर किया तो वॉक उसका नाम था रूल का, डोंट ये वाला डेफ रूल वॉक, और लाइट नॉट ग्रीन के अलावा कुछ भी होगा तो वो आएगा मेरे पास, ये वाला रूल एक्टिवेट होगा। मैं अब दोबारा कोई और वैल्यू देता हूँ। मैंने किया पिंक, जो होता नहीं है ट्रैफिक लाइट्स में, लेकिन फिर भी हम इसको टेस्ट करने के लिए, फिर भी क्या हुआ, सेम वही रूल एक्टिवेट हुआ। और मेरे पास वजह क्या थी उसकी, फैक्ट नंबर 4 की वजह से। मैं इसको रन करता हूँ। रन किया तो क्योंकि 2 रूल्स थे, दोनों बार रूल एक्टिवेट हुआ था, तो फायर होने के बाद डोंट वॉक का मैसेज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं लाइट में कुछ भी दे दूं ग्रीन के अलावा, तो हमेशा रूल नंबर जिसमें लिखा हुआ है नॉट ग्रीन वो कॉल होगा। और अगर तो मैं ग्रीन देता हूं तो वो फिर जाकर बाकी जितने भी रूल्स होंगे उनको उनमें चेक करेगा कि क्या वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सिंपल तरीका है। हमें इन सारे रूल्स से बचने के लिए आप अब अगर चाहते हैं कि यूज़र सेलेक्टेड ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम मेन्यू बताते हैं, मेन्यू में हम बताते हैं कि ऑप्शन 1 इज़ फॉर एडिंग, ऑप्शन 2 इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन 3 इज़ फॉर डिवीजन, और इस तरह के हम छोटे से अरिथमेटिक ऑपरेशंस बताते हैं। अब यूज़र करता क्या है कि वो इन 3 ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन 10 सेलेक्ट करता है, तो वो करेगा क्या, हम वहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर तो इनके अलावा कोई और जो भी ऑप्शन आएगा हम स्पेसिफिकली बता देते हैं कि नॉट 1 नॉट 2, या आप उस पर खुद सोचें हम उसको कैसे करेंगे। तो उसके अलावा जो भी ऑप्शन आएगी तो वो हमेशा ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू नॉट आउटसाइड द मेन्यू। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास जो है टिल्ट को यूज़ करने का फ़ायदा है हमारे पास। अब हम जाते हैं आगे, हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं बार कॉन्स्टेंट। बार कॉन्स्टेंट क्या करेगा, द सेकेंड connective constant is the bar constant. The bar constraint is used to allow any of a group of value to match. हमें ये सिंपल ग्रुप के अंदर जो वैल्यूज़ होंगे उनमें से कोई एक भी अगर मैच होता है तो वो उस पर जाकर उस रूल को एक्टिवेट करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज यू वांट अ रूल दैट प्रिंट आउट बी cautious if the light was yellow or blinking yellow. The following example shows how it doesn't use the
टिल्ट कांस्टेंट। डिफ रूल कॉशियस अगर हम बताते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम, लाइट येलो अगर है या ब्लिंकिंग येलो है तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, प्रिंट टी बी कॉशियस होना चाहिए। अब हम इसको ट्राई करते हैं। पहले हम रीसेट करते हैं ताकि सारे रूल फैक्ट्स जो हैं वो हमारे फैक्ट लिस्ट से रिमूव हो जाए ताकि हमारे लिए कोई मसला ना पैदा हो। अब हम करेंगे ये कि हम डिफ रूल हमने इसका कोई नाम रखा। अब हम इफ़ कंडीशन बना रहे हैं तो इफ़ के लिए हमें क्या करना होगा, येलो कर देते हैं, लाइट येलो, बल्कि ये लाइट क्योंकि हमारे पास बाकी सारों में एल स्मॉल है तो हम इसको भी स्मॉल करते हैं और साथ में हम बार लगाते हैं। ब्लिंकिंग येलो। अब ये हमारे पास रूल कंप्लीट हो गया। हम इंटर करते हैं एक और। तो हमने रूल बना लिया। रूल में हमने ये बताया कि डिफ रूल नाम हमने बताया, हमने ये बताया कि लाइट अगर येलो हो या ब्लिंकिंग येलो हो तो हमारे पास ये मैसेज आना चाहिए। अब हम करते ये हैं, हम सिंपल इंसर्ट करते हैं लाइट येलो। तो हमारे पास कौन सा आया, वॉक की ऑप्शन आ गई और जो हमने कॉशियस बनाया रूल वो आ गई। अब वॉक वाली क्यों कॉल हुई, क्योंकि हमने वहाँ पर बताया था कि अगर लाइट ग्रीन के अलावा कोई भी आ गया तो हमें ये वाला रूल एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और साथ में ये आ गया लाइट येलो का, तो इसमें हमारे पास ये दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। हम सिंपल इसको रन करें तो डोंट वॉक का मैसेज आ गया और साथ में हमारे पास बी कॉशियस का आ गया, क्योंकि इन दोनों में से लाइट में या येलो आ गया या हम साथ में अब देखते हैं ब्लिंकिंग का। अगर तो मैं सर्च करता हूँ लाइट येलो की बजाय ब्लिंकिंग येलो, तो अब आप देखें हमारे पास ब्लिंकिंग येलो के केस में भी सेम रूल एक्टिवेट हो गया, कॉशियस वाला ही एक्टिवेट हुआ। तो अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हमारे पास आ जाए तो दोनों एक और की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और दोनों में से कोई एक भी हो तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। और साथ में वॉक जिसमें नॉट ग्रीन वाली ऑप्शन थी तो वो भी हो रही है। सिंपल इसको रन करते हैं तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, डोंट वॉक और बी कॉशियस का। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, हम देखेंगे द सिंबल एंड को कि ये क्या काम करेगा। द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिविटी कॉन्स्टेंट इज एन कनेक्टिव कॉन्स्टेंट। द सिंबल ऑफ एन कनेक्टिव कॉन्स्टेंट इज द ampersand. The ampersand constraint forces connected constraint to match in union, as you will see in the following example. यहाँ पर दोनों की एग्जिस्टेंस
जहाँ पर n% होगा तो वहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगे उनके राइट और लेफ्ट पे दोनों का होना ज़रूरी है. द n% constant normally is used only with the other constant, otherwise it isn't not of much practical use. नॉर्मली n% हम यूज़ करते हैं और जो हमारे पास कांस्टेंट है उनके साथ कंबाइन करते हुए, क्योंकि अगर हम n% यूज़ करेंगे तो उसका इतना फ़ायदा इस वजह से नहीं है कि बजाय इसके कि हम दोनों चीज़ों में n लगाकर फैक्ट को चेक करें, वो बजाय उस एंड के भी काम कर लेगा. अगर हम अलग अलग से भी कर दें तो ज़ाहिर है जब वो मैच नहीं होगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो वो कॉल ही नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा. As an example, suppose you want to have a rule that will be triggered by a yellow or blinking yellow fact. That's easy enough. Just use the pipe connective constant as you did in the previous example. But suppose that you also want to identify the light color. अब हम उसमें ये चाहते हैं कि येलो या ब्लिंकिंग येलो है, लेकिन साथ में हम कलर स्पेसिफाई करना चाहते हैं. द सोल्यूशन इज टू बाइंड अ वेरिएबल टू द कलर दैट इज मैच्ड यूजिंग द n% एंड देन प्रिंट आउट द वेरिएबल. दिस इज वेयर द n% इज यूजफुल एज शोन बिलो. अब हम करेंगे क्या कि हम n% वैल्यू इसको यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है कलर के नाम से और जो भी यहाँ पर आ रहा होगा येलो या ब्लिंकिंग येलो, इसको हम इसके साथ बाइंड करने के लिए यूज़ करें कि जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर वैल्यू का होना मस्ट है और वो वैल्यू जो है वो कलर के साथ बाइंड हो जाएगी. तो हम n% को यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि एक तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा था, येलो था या ब्लिंकिंग येलो था. अब इन दोनों में से कोई एक आएगा जो इस कलर के साथ इस वेरिएबल कलर में आएगा. प्रिंट आउट हम फिर वो सिंपल प्रिंट आउट कर देंगे और साथ में वो कलर भी प्रिंट कर देंगे. द वेरिएबल कलर विल बी बाउंड टू whatever color is matched by the field yellow or blinking yellow. The and also is useful with tilt. For example, suppose you want a rule that triggers when the light is not yellow and not red. अब हम n% को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हम साथ में टिल्ट लगा दें. एक तो हम ज़ाहिर है यहाँ से जो भी हमारे पास येलो आएगी और ब्लिंकिंग येलो आएगी, इन दोनों में से जिसके साथ भी मैच होगा तो वो हमें वेरिएबल इसके साथ बाइंड कर देगा. वैल्यू जो है वो इसमें कलर में बाइंड हो जाएगी. और दूसरा तरीका उसका ये है कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर लाइट रेड है या लाइट रेड नहीं है या लाइट जो है वो येलो नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोई रूल हम एक्टिवेट करना चाहते हैं और हम वो कलर भी साथ रखना चाहते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं. और साथ में अगर हम नॉट की कंडीशन लगा रहे हैं जो टिल्ट है एक्चुअली, तो उस सिचुएशन में भी हम एंड यूज़ कर सकते हैं. आप इसके मुतालिक भी सोचिए कि हम इसको टिल्ट के साथ वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें हम इसको लगा सकते हैं टिल्ट के साथ. यहाँ पर तो सिंपल ये दो कंडीशंस हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट रेड और नॉट येलो के केस में, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉट रेड इवन ब्लिंकिंग की सिचुएशन या और कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस पर आप सोचिएगा. अब हम करते ये हैं कि हम जो हमने रूल बनाया था कॉशियस वाला, उसी में हम चेंजेस करेंगे. यहाँ पर अब मैं करता ये हूँ कि मैं वेरिएबल रखता हूँ कलर और साथ में मैं m% लगाता हूँ. और अब मैं यहाँ पर वो वेरिएबल प्रिंट कर दूँगा.
अब इस सिचुएशन में मेरे पास क्या हुआ, रूल जो है F2 की वजह से, क्योंकि ये फैक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ था हमारे पास, लाइट येलो और लाइट ब्लिंकिंग येलो दोनों सिचुएशन में दोनों फैक्ट्स पड़े हुए हैं, इस वजह से 2 मरतबा ये रूल एक्टिवेट हुआ। और वजह क्या थी कि क्योंकि और लगा हुआ था, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो ये रूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं, और क्योंकि ये फैक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए थे और हमें ये भी पता है कि अगर रूल में हम चेंजेस करते हैं तो वो जो फैक्ट्स फैक्ट लिस्ट में पड़े हुए हैं वो दोबारा यूज होंगे। तो हम जब रन करते हैं तो हमारे पास बी कॉशियस का मैसेज आ रहा है और साथ में वो वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी आ रहा है। तो एक तरीका ये हो गया हमें %% यूज़ करने का। हम करते ये हैं, हम रीसेट कर देते हैं तो हमारे पास जो फैक्ट्स थे वो सारे निकल जाएंगे वहाँ से। अब हमें ये पता है कि अगर येलो और ब्लिंकिंग येलो के अलावा कोई भी वैल्यू आ रहे होंगे तो उनके लिए रूल्स बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर चले जाएंगे। और अगर येलो आते हैं या ब्लिंकिंग येलो आता है तो उस टाइम पे हम जो हैं जो 2 रूल्स हैं हमारे पास वो एक्टिवेट होंगे। अगर आप देखते हैं, सर्च करते हैं हम ब्लिंकिंग येलो को, तो अब हमारे पास 2 रूल्स एक्टिवेट हो गए, एक वॉक का जो कि एक्चुअली नॉट ग्रीन था, और फिर हमारे पास कॉशियस का भी हो गया। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास डोंट वॉक की ऑप्शन आ गई और ब्लिंकिंग येलो की ऑप्शन भी आ गई। तो आप यहाँ पर पूरे सेंटेंसेस लिख सकते हैं कि बी कॉशियस बिकॉज द लाइट येलो इज ब्लिंकिंग, इस तरह के मुख्तलिफ मैसेजेस आप दे सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे और हम अब ये जो रूल मैंने आपको बताया कि हम ये कंडीशन भी रख सकते हैं कि अगर नॉट रेड हो और नॉट येलो हो तो उस सिचुएशन में हम अगर ये वैल्यू साथ यूज़ करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हम सिंपल एक और रूल बनाएंगे, इसको हम नाम देते हैं येलो। अब हम नॉट लगा रहे हैं, साथ जो टिल्ट साइन है और साथ में हम रेड का कर देते हैं और %, नॉट येलो कर देते हैं या टिल्ट येलो। अब इस सिचुएशन में क्या हो, मैसेज इंटर करेंगे अब ये हमने इंटर किया तो क्या हुआ, नॉट येलो रेड फंक्शन एक्टिवेट हुआ क्योंकि ब्लिंकिंग येलो आया हुआ है और ब्लिंकिंग येलो ब्लिंकिंग येलो रूल हमने बना लिया। अब हमने रीसेट कर दिया क्योंकि जो पिछले फैक्ट्स पड़े हुए थे उनकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमने रीसेट करने के बाद हम दोबारा देख रहे हैं इसको कि हमने रूल बनाया नॉट येलो और रेड, जब नॉट येलो रेड हो तो
हम नॉट की कंडीशन लगा रहे हैं और साथ में हम उसको चेक कर रहे हैं। तो नॉट येलो रेड होंगे तो मतलब ये होगा कि वो ग्रीन होगा फिर। तो अब इस सिचुएशन में हम असर्ट करते हैं लाइट सिंपली हम करते हैं रेड, तो देखते हैं क्या होगा। हम सिंपल हमारे पास जो दो रूल थे वो एक्टिवेट होंगे, नॉट ग्रीन वाला और रेड लाइट का, क्योंकि इसका मतलब ये है कि रेड लाइट जो हमने रूल बनाया था कि जब भी रेड लाइट होगी तो नॉट गो वाली ऑप्शन है। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो डोंट वॉक 2 मरतबा आ गया, क्योंकि दोनों में हमने ये कंडीशन लिखी थी। अब हम इस तरह करते हैं कि रेड की बजाय हम करते हैं ग्रीन। अब हमारे पास 2 रूल्स एक्टिवेट हुए हैं, एक तो ग्रीन वाला था, ग्रीन लाइट का फैक्ट 2 की वजह से, और दूसरा हमारे पास ये नॉट येलो और नॉट रेड वाला। उसकी वजह क्या है कि ना तो ये रेड है और ना ग्रीन है, तो अब इन दोनों के अलावा कुछ भी होगा, और एंड है क्योंकि एंड हम साथ लगा रहे हैं, और एंड की वजह से वो वेरिएबल आ भी रहा है। तो हम करते क्या हैं, हम अब सिंपल इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, वॉक गो सिंस लाइट इज ग्रीन, क्योंकि लाइट ग्रीन है इस वजह से हम मूव कर सकते हैं। अब हम करते ये हैं कि यहाँ पर हम करते हैं येलो, तो हमारे पास 2 रूल्स एक्टिवेट हो गए, और दोनों रूल क्या थे, एक वॉक जो जिसमें हमने बताया था नॉट ग्रीन के अलावा अगर ग्रीन नहीं है तो फिर वो रूल एक्टिवेट होगा, और दूसरा कॉशियस वाला था। रन करते हैं तो हमारे पास आ गया डोंट वॉक वाला और बी कॉशियस बिकॉज ऑफ येलो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम एंड को यूज़ कर सकते हैं टिल्ट के साथ भी, और हम एंड को यूज़ कर सकते हैं पाइप के साथ भी। दोनों यूज़ करने के लिए जो बार है, या हम उसको बार भी कहते हैं, तो बार के साथ जो हम और के तौर पे ले सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम एंड को यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसके रिजल्ट्स ठीक आते हैं। अब हम आगे जाएंगे, कुछ और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं कि वो किस तरह काम करेंगे। एक्चुअली क्लिप्स जो है वो बना तो नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट सिस्टम है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो बेसिक अरिथमेटिक के लिए यूज़ हो सकते हैं। क्लिप्स प्रोवाइड बेसिक अरिथमेटिक एंड मैथ फंक्शंस प्लस डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल द मीन एंड हम जो बेसिक अरिथमेटिक हैं इंटीजर को कन्वर्ट करने के या फ्लोट में कन्वर्ट करने के, वो सारे अवेलेबल हैं। For more detail, you can refer to the reference manual from Clips website. In Clips, a numeric expression that customary would be written as 2 plus 3 must be written in prefix form plus 2 and 3. हमने ये सीखा था बिल्कुल स्टार्ट में क्लिप्स के कि हम ऐसे कर सकते हैं, हमें प्रीफिक्स में करना होगा। इन द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ क्लिप्स द फंक्शन precedes the argument and parentheses must surround the numeric expression. हमें numeric expression से parentheses को उसके साथ रखना होगा। The customary way of writing numeric expression is called infix form because the math functions are fixed in between the arguments. जो हम नॉर्मली करते हैं उसको हम इनफिक्स कहते हैं, और इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स मेथड। अब हम जाते हैं एग्जांपल की तरफ, देखते हैं हम डिफ रूल एडिशन का। हमने एक रूल बनाया डिफ रूल, और उसका नाम हमने रखा एडिशन। नंबर्स ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हमारे पास कोई 2 वैल्यूज़ आ रही होंगी वेरिएबल के फॉर्म में, और हम इफ़ कंडीशन को चेक करने के बाद हम जाएंगे देन में जब जाएंगे तो हम साथ ही असर्ट कर रहे हैं कौन सी चीज़ हमारे पास जो कोई वैल्यू फिक्स कांस्टेंट होगा,
और x और y के जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आए होंगे उनको हम आपस में ऐड करेंगे। और एडिशन एक्चुअली किस तरह हो रहा होगा, सेम इस तरह। अब अगर हम इसको चेक करते हैं क्लिप्स के अंदर, तो हम रूल बनाएंगे। अब मेरे पास रूल आ गया, यहाँ पर हमने बनाया कि एडिशन सेम उसी तरह, नंबर्स, और असर्ट किया हमने आंसर प्लस के नाम से, और हमने यहाँ सारे पैरेंथेसिस बंद किए। इंटर करते हैं तो हमारे पास रूल ठीक था और आ गया। अब हम करते ही हैं कि हम असर्ट करते हैं कोई दो वैल्यूज़, थ्री और 5 हमने असर्ट किया, इंटर किया, तो इससे हुआ ये कि ये रूल एक्टिवेट हो गया। अब ये रूल एक्टिवेट हुआ तो हम इसको रन करते हैं फायर करने के लिए। जब हमने फायर किया तो हमारे पास जो इन दोनों की एडिशंस थी वो एग्जैक्टली उस एक वैल्यू में आकर वहाँ पर प्रिंट हो गई, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी, जो कांस्टेंट हमने रखा हुआ था आंसर प्लस, तो वो एग्जैक्टली सेम आ गया। अब हम आगे जाते हैं, हम और भी इसमें डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। अगर हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं और फिर तीनों को ऐड करते हैं तो वो सिंपली इसी तरह ही होगा कि ये जो प्लस साइन है ये हर एक के इनफिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। और हमारे पास एक मेथड है ट्री की फॉर्म में, जिसमें हम कोई भी उसको वैल्यू देते हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में तो वो इनफिक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए ताकि हमारे पास रिजल्ट्स गलत ना आए। अगर तो हम इंटीजर आर्गुमेंट्स ले रहे हैं और इंटीजर की एडिशंस कर रहे हैं तो वो हमेशा हमारे पास रिज़ल्ट इंटीजर की फॉर्म में आ रहा होगा। और अगर हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं और उनकी एडिशन हम कर रहे हैं तो वो हमारे पास रिज़ल्ट फ्लोटिंग फॉर्म में आ रहा होगा। और अगर हमारे पास एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू फ्लोटिंग है तो रिज़ल्ट हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू में आ रहा होगा। तो ये हमें जहन में रखना है कि हम कौन से वैल्यूज़ को रिटेन करना चाहते हैं। अब हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अगर तो मेरे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं, हमें ये पता है कि इसका आउटपुट जो है वो इंटीजर होगा, तो मैं अगर क्लिप्स में सिंपली एक फंक्शन को कॉल करूं फ्लोट के नाम से और उसके अंदर वो वैल्यूज़ पास कर दूं जिनको मैं एडिशन के बाद उसको फ्लोटिंग में रखना चाह रहा हूं, तो ये कीवर्ड यूज़ करूंगा और साथ में मैं फंक्शन को कॉल करके, और ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िक्स वैल्यूज़ हों। और सेम इसी तरह अगर तो वो हैं फ्लोटिंग में और मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ इंटीजर में, तो मैं ये कीवर्ड है इंटीजर, इसको यूज़ करूँगा और वैल्यूज़ दे दूँगा एडिशन में, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में। फिर हमारे पास डिफ रूल है कैलकुलेटर के नाम से। अगर हम मिक्स्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं एट अ टाइम, बहुत सारे हम कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। सिंपल x, y और z वेरिएबल्स हैं, ये कुछ भी हम इंटर करते हैं नंबर्स की फॉर्म में, तो हमें फिर वहाँ पर पैरेंथेसिस के साथ बताना होगा कि प्रायोरिटी किस चीज़ की पहले है, कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में। हमने यहाँ पर एक पैरेंथेसिस बनाए, जो पहले काम होगा वो ये होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इनफिक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो इनका रिज़ल्ट आएगा तो वो उनके साथ एडिशन हो जाएगी, उसकी एक ही वैल्यू ये होगी और एक जो इन दोनों के कम्बिनेशन से कोई आया होगा तो उनकी आ जाएगी। तो अगर हम इस साइड से जाएंगे तो पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर हमारे पास जो उनका रिज़ल्ट आएगा उसकी एडिशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू बाउंड करना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो मैं बाउंड करना चाह रहा हूँ और फिर मैं उसको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो ये भी बिल्कुल इजी है। हमारे पास जो फंक्शन है एडिशन का, उसके अंदर हम एग्जैक्टली सेम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो आंसर हमारे पास आ रहा है, एक तो हम उसको असर्ट कर दें, तो असर्ट भी हो रहा है, और दूसरा हम
सेम यहाँ इसको एक वेरिएबल में भी रख सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम है आंसर के नाम से, और बाइंड हमें पता है कि 2 वैल्यू को बाइंड करता है, तो इनकी कम्बिनेशन जो होगी, क्योंकि वो एक होगी तो वो एक वैल्यू हो जाएगी, और ये वेरिएबल है तो इसमें वो बाइंड हो जाएगा। तो हम 2 चीज़ों को आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अब हम अगर प्रिंट आउट करते हैं आंसर को जो वेरिएबल है, तो इन दोनों की जो एडिशन होगी वो एक्चुअली यहाँ पर आकर हम उसको चेक कर सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि हम यूज़र से कोई वैल्यू लें, रन टाइम पे हम कीबोर्ड का वेट करना चाहते हैं कि कीबोर्ड से कुछ इंटर हो। Beside matching and pattern, a rule can get information in another way. Clips can read the information that you type from the keyboard using the read function. हमारे पास read function है जिससे हम read कर सकते हैं कीबोर्ड की इनपुट को। Note that no extra CRLF is needed after the read to put the cursor on a new line. अब हम जब रीड करते हैं और जब इंटर प्रेस करते हैं तो वो हमारे पास नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। द रीड ऑटोमेटिकली रीसेट द कर्सर टू अ न्यू लाइन, हम ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे चले जाते हैं। अब हम करते ये हैं कि हम सिंपल सा एक रूल देख रहे हैं, 2 रूल्स हम बनाएंगे जिसमें एक में हम वैल्यूज़ ले रहे होंगे और फिर दूसरे में हम उसको प्रिंट कर रहे होंगे। अब हम करते ये हैं कि हम एक रूल बना रहे हैं, डिफ रूल रीड इनपुट के नाम से, और उसकी कोई इफ़ कंडीशन हमने नहीं रखी। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही हम कोई फैक्ट जैसे ही सिस्टम रन होगा, क्योंकि एम्प्टी स्पेस है तो वो रूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ये रूल आएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि एसर्ट करेंगे, और रीड हमारे पास कीवर्ड है, तो एसर्ट कलर, जैसे ही हम इसको जो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये रन हो रहा होगा तो हमें कोई वैल्यू हमसे मांग रहा होगा जो हम यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू देंगे। तो वो जब रीड में आ जाएगा, हमने किया क्या कि एसर्ट कर दिया उसको। कलर हमारे पास कीवर्ड है, तो कीवर्ड होगा और जो भी वैल्यू यहाँ आ रही होगी उसको हम रीड के फॉर्म में जो भी आ रही होगी वो ये दोनों की कम्बिनेशन से ये वैल्यू यहाँ तक एसर्ट हो जाएगी। अब जब एसर्ट होगी, इसके बाद हमने एक रूल को फायर एक्टिवेट कराना है, और वो रूल क्या है, कलर क्योंकि सेम वही होगा जो यहाँ पर है, तो ये की फिक्स वैल्यू होगी, तो ये एग्जैक्टली फिक्स ही है। साथ हमने क्या किया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कलर जो आ रहा है वहाँ से उसको हमने नाम दिया कलर रीड के नाम से, ये हमारे पास वेरिएबल बन गया। अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी है, अगर तो वो रेड है या येलो या ब्लू है, तो फिर क्या करें, इस सिचुएशन में रीट्रैक कर दे और हमारे पास आ जाए प्रिंट आउट में करेक्ट। अगर तो इनके अलावा कोई भी आएगा तो वो उस सिचुएशन में इस रूल को एक्टिवेट नहीं करेगा, और जब हमें पता है कि हम रीसेट करेंगे तो ये रूल हमारे पास जो ये वाला रूल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं। अच्छा, हम आ गए, हमने देखा कि हम दोनों रूल हमने यहाँ पर इंटर कर दिए। अब आप देखें कौन से रूल्स थे। हमने सिंपल एक रूल ये बनाया कि डिफ रूल रीड इनपुट के नाम से। अब यहाँ पर क्या है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं इफ, तो इस वजह से हमारे पास रीड इनपुट वाला जो रूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी फैक्ट जब नहीं होगा, जब हम रीसेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब कुछ भी ना हो। अब ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या हैं, उसके बाद कि हम कोई नेम प्राइमरी कलर हम मैसेज प्रिंट करते हैं और फिर हम कोई रीड करते हैं वैल्यू को,
उसके बाद हम दूसरे रूल बनाया हमने कि डिफ रूल चेक इनपुट को चेक करते हैं। अगर तो वो जो भी रीड हुआ है, जो इनपुट आई है वो रेड है या येलो है या ब्लू है, तो हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा करेक्ट का, और हम उसको रिट्रैक्ट भी कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर उसका एड्रेस ले लिया है इस पूरे फैक्ट का, तो हम उसको रिट्रैक्ट भी कर रहे हैं और साथ में हम ये मैसेज कर देंगे। अब हम करते ये हैं, हम इसको सिंपली रन करते हैं। जब हम रन करेंगे तो ये हमसे वैल्यू मांगेगा। नेम प्राइमरी कलर, अब हम प्राइमरी कलर मांग रहे हैं, सिंपल हम लिखते ये हैं ब्लू। मैंने ब्लू इंटर किया तो एक तो मेरे पास हुआ ये कि करेक्ट आ गया, क्योंकि इनमें से एक मैचिंग हो गया और साथ में वो रिट्रैक्ट भी हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि अगर हम दोबारा रीसेट करते हैं, रीसेट किया तो ये दोबारा वो स्टार्ट वाला फंक्शन आ जाएगा जिसमें हम वैल्यू इंट करते हैं, और हम इसको सिंपल रन करें तो ये हमसे अब दोबारा वैल्यू मांगेगा। दोबारा हम इंटर करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड का वेट हो रहा है, हम यहाँ पर ग्रीन इंटर करते हैं। जब हम ग्रीन इंटर करेंगे तो क्योंकि ये ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पर, तो ये रूल एक्टिवेट होगा ही नहीं। ग्रीन किया मैंने तो कलर ग्रीन इन तो हो गया एज अ फैक्ट, लेकिन हमारे पास सेव कुछ भी नहीं हुआ। जो एक्चुअली रूल एक्टिवेट होना था वो हुआ ही नहीं, जो सेकंड रूल था हमारे पास। तब हम करते क्या हैं, दोबारा रीसेट करते हैं, दोबारा हम कोई वैल्यू देते हैं, नहीं हम रन करेंगे इसको। तो जब रन करेंगे तो ये हमसे वैल्यू मांगेगा, और साथ में आप देखें हमारे पास जो माउस का कर्सर है उस पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। इसका मतलब ये कि हमने कुछ इंटर करना है यहाँ पर। जब तक हम कोई इंटर नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। अब हमने यहाँ पर इंटर करना है, मैं रेड इंटर करता हूँ तो इससे जो दूसरा रूल था हमारे पास वो एक्टिवेट हो जाएगा, और दूसरा रूल एक्टिवेट होने की वजह से करेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और वो उसको रिट्रैक्ट भी कर रहा है। तो साथ दो काम हो रहे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा इसको रीसेट करता हूँ और रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर येलो और साथ में रेड देता हूँ, और बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, मैं ग्रीन और येलो करता हूँ। अब अगर आप देखें यहाँ पर ग्रीन तो है नहीं लेकिन येलो तो है, और हमने स्पेस दे दिया, तो क्या ये रन होगा, ये रूल एक्टिवेट होगा? नहीं। उसकी वजह क्या है कि जो रीड है वो सिंपली एक इनपुट लेता है, वो एक वैल्यू लेता है। जब नॉन प्रिंटेबल वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद वो दूसरे को कंसिडर नहीं करेगा। तो हमने चूंकि पहले ग्रीन दिया हुआ था तो उसने ग्रीन के एंड के बाद वो कोई वैल्यू नहीं ली उसने, तो येलो ने एंट्री नहीं की, येलो का उसको पता ही नहीं चला। इस वजह से सिंपल ग्रीन आ गया और येलो आया ही नहीं साथ। अब हमारे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज हम रखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम स्पेस के साथ वैल्यूज रखना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में हम कौन सा कमांड यूज़ करेंगे और उनको फिर हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा और स्ट्रिंग को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और उसके साथ पैरेंथेसिस आएंगे और चीज़ें आएंगी, तो हम उनको कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रीड लाइन का फंक्शन देखेंगे और भी कुछ छोटी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो देखेंगे। तो आज हम समराइज करते हैं। हमने आज फंक्शनैलिटीज़ देखी, टिल्ट का, पाइप का देखा जो बार है, और साथ में एन% देखा कि ये क्या चीज़ें हैं, और हमने ये देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिक देखे हमने, साथ हमने ये देखा कि रीड कैसे करते हैं यूज़र के कीबोर्ड से। तो अब तक ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।